ایران جنگ کے باعث امریکہ میں مزید مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر فیڈرل ریزرو بینک نیل کاشکاری نے خبردار کیا کہ ایران جنگ اور خلیج فارس میں کشیدگی کے باعث امریکہ میں مہنگائی کو 2% کے ہدف تک لانا مشکل ہوگا، کیونکہ جنگ کے باعث تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ امریکی معیشت پر مہنگائی کا دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے، جس مہنگائی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، 7 افراد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 4 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ وسطی غزہ کے علاقے الزوائدہ میں فضائی حملے میں عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد ملبہ اور دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دوسرا حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا۔ اکتوبر 2025 کے بعد جنگ بندی ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے۔ یورپی یونین نے بھی مغربی کنارے میں اسرائیل کے آبادکاری کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ E1 منصوبے کا ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندوں نے کہا مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاریاں غیر قانونی ہیں۔ اس سے پہلے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے اور کینیڈا مشترکہ بیان میں منصوبے کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں۔ برطانیہ نے اسرائیلی ناظم امور کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا ہے۔ امریکی ثالثی میں شام اور اسرائیل کے اردن میں اعلیٰ سطح مذاکرات ہوئے، جس کا مقصد شام میں اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کم کرنا تھا۔ شامی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق شامی وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہوں کی اسرائیل کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات ہوئی۔ شامی حکام نے کہا پہلی ترجیح اسرائیلی فوجیوں کی 8 دسمبر 2024 سے پہلے والی پوزیشن پر واپسی اور 1974 کے معاہدے پر عمل درآمد ہے۔ عراق نے عسکری گروپوں کو غیر مسلح ہونے کے لیے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العربی کا کہنا ہے حکومت کے لیے فوجی محاذرائی ڈیڈ لائن ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کے انخلاء کے بعد عسکری گروپوں کو غیر مسلح کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ عراق میں تمام سیاسی اکائیاں متفق ہیں۔ بین الاقوامی اتحاد کے انخلاء کے بعد جنگ اور امن سے متعلق فیصلے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ ان گروہوں کے ہتھیار حکومت کے زیر استعمال ہوں گے اور انہیں کسی غیر ملکی فریق کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ فرانس دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا فرانس اور سعودی عرب نے ہمیشہ خطے کو درپیش چیلنجز کے باوجود امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کیا۔ آئندہ بھی اس حوالے سے باہمی مشاورت جاری رکھیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ عملی اقدامات پر بھی قائم ہے۔ بڑے منصوبے، جدید ترین ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور EWC جیسے بین الاقوامی ایونٹس اس تعاون کی مثال ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ، شیزا فاطمہ، علی پرویز بھی شریک تھے۔ اظہر فاروق مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے اظہر۔ جی صاحب، یہ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ کی اہم ترین ملاقات تھی۔ اس میں وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں مختلف ایشو تفصیلی طور پر زیر غور آئے ہیں۔ بالخصوص اس ملاقات میں صوبہ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں سیاسی عہدیداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق بھی ہوا، جبکہ سندھ کو مختلف منصوبوں کے حوالے سے جو درپیش چیلنجز ہے وہ بھی تفصیلی طور پر اس ملاقات میں زیر غور آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج رات آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ 13 ربیع الاول کو مرگیل ہڑتال کی کال دیں گے۔ حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دوں، گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، فائدہ مافیا کو ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے۔ آج ہم نے ایک بہت اہم مشاورت طلب کی ہوئی ہے، اس میں ہم پورا آئندہ کا لائحہ عمل طے بھی کریں گے اور رات کو میں اس کا انشاءاللہ اعلان بھی کروں گا۔ 13 ربیع الاول کو ہم ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ ہڑتال کی جائے گی اور پورا پاکستان انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے۔ اجازت دیتے ہی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، جتنے میں امپورٹ کیے اس سے کم میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ فائدہ ہوگا اس مافیا کو جو امپورٹ میں بھی کما رہی ہے اور جو ایکسپورٹ میں بھی کما رہی ہے۔ یہ دھرنا ہمارا اسی پورے سسٹم کے خلاف ہے۔ اگر حکومت لیوی کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم
सड़कों के ऊपर बाकायदा दोबारा से बैठना शुरू करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का अजलास आज होगा। अजलास में पास्को के गंदम ज़खायर तमाम हकदारों को फराहम करने पर गौर होगा। इजलास में PSO और ओक्यो ट्रेडिंग के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर भी गौर होगा। इजलास के एजेंडे में PIA क्लेम्स वाजिबात की अदायगी के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत शामिल है। एजेंडे में रोज़ वैले होटल के IC अवार्ड 2025 का मामला भी शामिल है। इजलास में नेशनल बैंक की 43 अरब 84 करोड़ 90 लाख रुपए की टर्म फैसिलिटी पर भी गौर होगा। K4 मंसूबे के लिए 7 अरब 79 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी पर भी गौर होगा। रेक्यूटिक मंसूबे के लिए सिक्योरिटी चार्जेस की अदायगी की 5 अरब 67 करोड़ रुपए ग्रांट पर गौर किया जाएगा। फैसलाबाद में आटे की कीमत में इजाफे के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए का हो गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद काशिफ। बाद में आटे की कीमत में जो है वो इजाफा हो चुका है। पहले जो है 20 किलो का थैला 2400 रुपए का था, लेकिन अब जो है वो 3000 रुपए का हो चुका है। 30 रुपए जो है फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को आटे खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आटे की कीमत 1 किलो में 30 रुपये बढ़ गए हैं। अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अर्ज़ है गवर्नमेंट से, खुदाया मेहरबानी करो अवाम के ऊपर, बहुत मुश्किल हालात हुए हैं। बिजली ने बिलों में हमारा लक तोड़ा हुआ है। मुतालबा ये किया जा रहा है हुकूमत से कि जिस तरह से पहले गंदम जो है फराहम की जाती थी सस्ते कीमत पर, उसी तरह की जाए ताकि आटे की कीमत जो है बरकरार है। शहरी ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत नोटिस ले ताकि आटे की कीमत जो है वो कम हो सके। जी, ख़वातीन वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन हैं तो बतौर औरत रोज़गार से क्यों रोका जा रहा है? इनकलाबी शायर हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब जालिब कहती हैं खाने का ढाबा लगाने पर धमकियां दी गईं। मकामी अमले ने 5000 रुपये रिश्वत तलब की। सुजुकी एवरी के अंदर मैं खाना बना के लेके जाती हूँ और जैसे ही अंधेरा होता है 7 से 8 मर्द आते हैं, तो धमकियां देते हैं कि जी आप ये ढाबा या आप यहाँ से उठा लें, इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, कल आप हमें यहाँ पे नजर ना आए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक पीछे से एक आदमी आता है और मुझे कहता है कि ये पैरा फोर्स वाले लोग हैं, 5000 रुपए हफ्ता दे दिया करें, और कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। 10 मिनट के बाद फिर एक बंदा पीछे से आता है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे कहता है कि जी हम इनको रोक लेंगे, आप 1000 रुपए रोजाना का दे दिया करें। खुदा के वास्ते मरियम नवाज साहबा, तो आप कहती है कि खवातीन बच्चियां और लड़कियां मेरी रेड लाइन है, वो आपकी रेड लाइन कहाँ गई? इंतजामिया में से राब्ता कर रहे हैं। मेरे लिए कल नाश्ता लेके आई हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि जी आपको कहीं पे भी जगह दे देते हैं, आपको हम सेटअप बना के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स का इजलास। मरीम नवाज ने मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट्स पर 3 शिफ्टों में काम करवाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है, बरवक्त तकमील ज़रूरी है। मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को आगे नहीं जाना चाहिए। गुजरांवाला ब्लू लाइन मैस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर की गई। वज़ीर आला ने फैसलाबाद और गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत की। ऐवान सदर में केटी बंदर पोर्ट से मुताल्लिक इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी को केटी बंदर पोर्ट की तरक्की पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। इजलास में पोर्ट की तामीर और तरक्की और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर शेरी रहमान और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है, एहतसाब से कोई बालातर नहीं है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ 827 केसेस सामने आए हैं। 629 केसेस के फैसले हो चुके हैं। 198 पर कार्रवाई जारी है। 589 अफसरान व अहलकारों को सजाएं दी गईं। 128 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग किया गया। 6 को जबरी रिटायर किया गया। 14 मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती और 10 को मुअत्तल किया गया। बन्नू के इलाके मंडान गेट में तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। एहसान खटक हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए एहसान खटक। जी बिल्कुल, ये पुलिस के मुताबिक ये बयान है कि मंडान गेट पर नामालूम दहशतगर्दों ने बारूद मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद नस्ब कर रखा था, जो पुलिस मोबाइल वैन के साथ ही बिल्कुल वो पार्क किया गया था। यहाँ पर पुलिस एहलकारों की
नाकाबंदी होती है और ट्रैफिक का अमला भी यहाँ पर मौजूद रहता है। ये इंतहाई गुंजानाबाद इलाका है। शहरियों में इस वाक़े के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है और एक खौफ की फिजा कायम हुई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी तौर पर यहाँ पर मोटरसाइकिल से बारूदी मवाद बरामद करके उनको नकारा बना दिया गया है और बड़ी तबाही जो है उनको नाकाम बना दिया गया है। शुक्रिया आपका। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद पंजाब भर के स्कूल आज से फिर आबाद हो गए। लाहौर में नन्हे तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर बच्चे और असातिज़ा पुरजोश दिखाई दिए। तफसीलात हसन हफीज़ की रिपोर्ट में। हमने समर वेकेशन में बहुत एंजॉय किया है। स्कूल में भी आ जाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी टीचर्स और फ्रेंड्स से इतने टाइम बाद मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैंने छुट्टियों को बहुत एंजॉय किया और आज फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब भर के स्कूल्स में एक बार फिर रौनकें लौट आईं। सुबह सवेरे यूनिफॉर्म पहने बच्चे बस्ते उठाए स्कूल पहुंचे तो कई चेहरों पर खुशी और जोश देखने को मिला। आज हम समर वेकेशन के बाद आए हैं। हमने समर वेकेशन में बहुत एंजॉय किया और स्कूल में भी आ जाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट डे है। मैं अपनी टीचर्स और फ्रेंड्स से इतने टाइम बाद मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैंने समर वेकेशन में बहुत एंजॉय किया और अपना सारा काम कंप्लीट किया। मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी हैं। मैंने छुट्टियों को बहुत एंजॉय किया और आज फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समर वेकेशंस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की है और मैंने समर टास्क पे अपना सारा कंप्लीट किया और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल का। दूसरी जानिब असातिज़ा भी तलबा को खुश आमदीद कहते दिखाई दिए। असातिज़ा का कहना है कि छुट्टियों के बाद बच्चों को दोबारा तालीमी माहौल से हम आहंग करना और इनकी पढ़ाई में दिलचस्पी बहाल रखना अव्वलीन तरजीह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज छुट्टियों का इख्तिताम हुआ मौसम गर्मा की और आज जो बच्चों की शिरकत है वो भी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है फर्स्ट डे के लिहाज से। अक्टूबर में हमारे एग्जाम्स हैं तो वी आर वेरी हैप्पी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल आ गए और वो फिर से एक्टिवनेस और फ्लो ऑफ स्टडी में आ जाएंगे। छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचने वाले बच्चों के चेहरों पर नया जोश नजर आया। असातिज़ा पुर उम्मीद हैं कि नए तालीमी मरहले में तलबा न सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे बल्कि अपनी सलाहियतों को भी मजीद निखारेंगे। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।